بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ پیارے ناظرین، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں؟ اس مقدس ماہ رمضان میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس پاک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مبارک میں وہ کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے، اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، اور وہ کون سی بدبخت قوم ہے جن کی اس مقدس مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دردناک عذابات بیان فرمائے ہیں؟ پیارے ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاشرت اور ماہ اشدد رقص۔ اسے ماہ صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزے دار روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کی جزا عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ معاشرت کا معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مبارک مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اسے ماہ معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے، اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس لیے اسے ماہ اشدد رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح و شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی وہاں سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھر سوار اس کی چھاؤں میں 5 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ
जन्नत को हुक्म देता है, मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अन करीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। नंबर 5, जब माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। उस वक्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मज़दूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उसे उसकी मज़दूरी दी जाती है, यानी रमज़ान की आखिरी रात रोज़ेदारों के लिए उनकी मज़दूरी मिलने का वक्त होता है, गुनाहों का कफ़ारा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें एक जुमा से दूसरे जुमे तक और एक रमज़ान से अगले रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक के कबीरा गुनाहों से बचा जाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान शरीफ की हर रात यानी हर रात सुबह सादिक तक आसमान में एक मुनादी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है, ए भलाई के तालिब, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा। ए बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा। कोई मग़फ़िरत का तालिब है कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। क्या कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और ईद के दिन पूरे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। एक दूसरी रवायात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नम से नजात अता फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अज़ाब इलाही के हकदार बन चुके थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श अज़ीम के नीचे से मेसरा नामी हवा चलती है जो जन्नत की दरख्तों और पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ पैदा होती है जिससे बेहतर आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस दिलकश आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें ज़ाहिर होती हैं और वो जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो हूरें कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व तआला से मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। फिर वो हूरें जन्नत के दरोगा रक्षक हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम से कहती हैं, आज ये कैसी रात है। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे नाज़रीन, रवायतों में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है। आप नमाज़ों की कसरत फरमाते और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़्यादा दुआएं मांगा करते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है।
रमज़ान मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रज़ा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे की राह में ना आए और मेरा बंदा पूरी लगन से मेरी इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर ले। बदनसीब हैं वो लोग जो इस मुक़द्दस महीने में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले कामों को छोड़ देते हैं और इस माह मुक़द्दस को भी गुनाहों में गुजार देते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला इस पाक महीने में शैतान को भी कैद कर उसके बावजूद भी लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। हज़रत सैयदना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग इस बाबरकत महीने में अपनी बख्शिश न करवा सके वो कितने बदनसीब हैं। एक सहाबी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, रमज़ान के हक़ को ज़ाया करना क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में हराम कामों को करना सबसे बड़ा अफसोस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ज़िना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह तबारक व तआला और उसके तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहेंगे। अगर ये शख्स अगले रमज़ान से पहले मर गया तो उसके पास कोई भी ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। तो माह रमज़ान के मामले में डर जाओ, क्योंकि जिस तरह इस मुक़द्दस महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं उसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी कि गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि रोज़ा रखने का क्या मकसद है, रोज़ा किन पर फ़र्ज़ है और किन लोगों को रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है। चनाचे इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और ये गिनती के दिन हैं। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले, और जो उसकी ताकत ना रखे तो वो बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दे, और जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है अगर तुम जानो रोज़े का मकसद तकवा और परहेज़गारी। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा रखने का असल मकसद बयान फरमाया कि रोज़े तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, यानी रोज़ा इंसान के अंदर खुदा का खौफ, गुनाहों से बचने और नेक बनने की तौफीक पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इन लोगों का भी ज़िक्र फरमाया है जिन्हें रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो तो इतने दिनों के रोज़े बाद में पूरे कर लो। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि जो शख्स शरई सफ़र पर हो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, जो इतना बीमार हो कि रोज़ा नहीं रख सकता उसे भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं तुम पर तंगी नहीं चाहता बल्कि आसानी चाहता हूँ। रोज़े किस पर फ़र्ज़ हैं? हर मुसलमान मर्द व औरत पर जो अक्लमंद और बालिग और सेहतमंद हो, सफ़र पर ना हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए जिनमें पढ़कर पहली उम्मतें हलाक हो गईं। सदका जारिया की नीयत से इस बयान को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ।